Very good morning, my dear students. Today we are about to start chapter number 3 of Social Studies. It goes like this: Indian Constitution. When we talk about Indian Constitution or the simple word Constitution, we are talking about a document, a written document, which gives us directive policy, fundamental rights, as well as it tells us the fundamental duties of a citizen who resides in a country. It has got its own responsibilities to fulfill. Now we have responsibilities of our cultural heritage, responsibility regarding society, responsibility regarding betterment and upliftment of the society, and to eradicate the social vices we are suffering from, such as child marriage, widow remarriage, dowry system. Not education is not getting not for all, and this kind of that caste system is actually killing our society in certain manner. So we have got this written document. It has got preamble into it. In the 9th standard you will learn that it is very important, and it is described elaborately on the aspects of different points. There are certain type of laws you have known, you guys have known about it, that before 18 before you get 18 years old, you can't drive a bike. That is adult suffrage. You can't vote. But after 18, it is believed that you have got enough common sense to choose your government, to choose the people. Why you have to choose the government? You have to choose the government for your own benefits. They are going to raise your questions, your problems in the parliament. This is our sole motto, and we want ourselves, our society, our system, our city to be clean, to be corruption free, and everybody should get justice. So, as we are social animals, and society is extremely important for us, so we have to be working with Indian Constitution. Over here, Haley, Priyanshi and Sachin are watching the final match of World Cup of 2011. Even I have watched it. The fascinating 2000 World Cup match. India won it on television. अब यहाँ पे 3 कैरेक्टर है. Haley, Priyanshi and Sachin are watching the final match of World Cup of 2011 on TV with their parents. An exciting match is going on between India and Sri Lanka. Exciting match, I believe it was the finals. Who will win the World Cup, India or Sri Lanka? सबको ये लग रहा था कौन जीतेगा, इंडिया या श्रीलंका जीतेगी. Sri Lanka had put up a challenging target for India to achieve. I believe 284 or 283 was the target. I'm not sure. Go to the Google and check it. That was a very challenging target. First, Sri Lanka batted, and they challenged India to score 282 in limited overs. LOI, limited overs format, यानी कि 50 overs. But with the fearless batting of Indian captain Mahendra Singh Dhoni, and firstly, I think on 0, Virendra Sehwag was out, and then Gautam Gambhir played a beautiful knock, and Sachin Tendulkar got out early, and then Mahendra Singh Dhoni took the crease by a storm, and India won the World Cup. Everyone was rejoicing in victory. Everyone was very happy. Haley said to her mother while watching TV, "Mummy, the previous match between England and India resulted in a tie. What does that mean?" अब उन्होंने पूछा कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो मैच हुआ था वो टाई हो गया था. टाई मीन्स का मतलब क्या होता है? She asked her mother. Neeta Ben said her mother. Haley, for a popular game like cricket, ICC had a systematically formed rules. अब ICC ने International Cricket Council has formatted or formulated some certain rules which should be applicable to every single team who is taking part in international tournaments. तो आईसीसी ने कुछ रूल्स फॉलो किए.
A tie in a match means that both the teams have an equal score. Tie का मतलब क्या है? दोनों टीमों के अंदर equal score हो चुका है, उसको बोलते हैं tie. तो both the teams will get 1 point. The match is for 2 points, so they will get 1 point. Haley, for a popular game like cricket, the ICC has systematically formed rules. A tie in a match means that both the teams have an equal score. Even the games like football, hockey, कबड्डी etc. have their own set of rules. अब it is said, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि हॉकी is India's national game, but it is not like that. Go and search out on the Google. It is never said by anybody, or it is never declared by the Indian government that hockey is our national game. It is played beautifully by us. We are masters of it, as well as with kabaddi, but it is not our national game. Kabaddi etc. have their own set of rules. सबके different set of rules हैं. If a game has so many rules, then to run the administration of the populous nation, we surely require well-framed rules. अब ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं. फिर ये कह रहे हैं, if the game has so many rules, एक simple game है, it's played for the fun activity, for the physical exercise. If that has got so many rules and we have to follow those rules, same as that, if you want to run an administration, एक व्यवस्था चलाने के लिए, मिनिस्ट्री चलाने के लिए, पॉपुलस नेशन मीन्स पीपल, फुल ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं, वी श्योरली रिक्वायर वेल फ्रेम्ड रूल्स. हमको वेल फ्रेम्ड रूल्स की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे रूल्स विच आर सेट परफेक्टली. नाउ वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट, अब ये है प्रियम्बल, उसको हम प्रियम्बल बोलते हैं. Before starting to reading the constitution, we have to take a oath. हमको सबको एक oath लेनी पड़ती है, कसम खानी पड़ती है. वो कसम ये है, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens. सबसे पहले we the people of India having solemnly resolved, पूरे तरीके से resolve करते हैं to constitute India with a sovereign means अखंड, सब तरीके से सब समान है. सोशलिस्ट, सभी तबके के वर्ग समान है, पैसा सबके ऊपर इक्वली बांटा जाएगा. सेक्युलर, सभी धर्मों को मानने वाला. डेमोक्रेटिक, अपना राजा खुद चुनने वाला. रिपब्लिक, आपको पता ही है व्हाट इज रिपब्लिक, इंडिया इज ए रिपब्लिक, पब्लिक के वाला. एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, सभी सिटीजन्स को सिक्योर किया जाएगा किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू में. ऐसा नहीं है समबडी इज गोइंग फॉर अ वर्क to America, Canada, New Zealand, Australia, and he went over there, and if some problem arises over there, and the India will not take actions, it is our responsibility, because they are citizens, they have to take the responsibility, so the government will take the actions. Then justice, न्याय सबको मिलेगा. सोशल सोसाइटी के हिसाब से, इकोनॉमिक पैसे के हिसाब से सबको मौके में दिए जाएंगे. एंड पॉलिटिक्स के अंदर भी आप एक्टिव पार्ट ले सकते हैं. लिबर्टी ऑफ थॉट, आपका थॉट प्रोसेस लिबर्टी हो सकती है, आप कुछ भी किसी भी तरीके से समाज को आगे बढ़ाने वाली सोच रख सकते हैं. एक्सप्रेशंस, अपने एक्सप्रेशंस ऐसे रख सकते हैं. बिलीफ, कहीं भी भरोसा रख सकते हैं, किसी भी भरोसे को मान सकते हैं. जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ मेडिकल का भी. मेडिकल के अंदर मैनी पीपल बिलीव इन आयुर्वेदा, मैनी पीपल बिलीव इन एलोपैथी, सो मैनी पीपल बिलीव इन यूनानी मेडिसिन, many people believe in naturopathy, some people believe in homeopathy, so this is their belief, whatever they choose, nobody can tell other people. Then faith comes with the religion, it is connected with religion. तो religion में हमारे आप देखेंगे तो जो भी हमारे सेक्ट हैं, जैसे कि आप कई लोग आप देखेंगे तो हम बोलेंगे हम हिंदू हैं. हिंदू में आप थोड़ा अंदर जाएंगे तो द पीपल विल से वी आर ब्राह्मण्स. ब्राह्मण्स के अंदर आप जाएंगे तो बोले आप कौन से ब्राह्मण हो, तो बोले हम प्रश्नोरा ब्राह्मण हैं, औदिच्य ब्राह्मण है. ठीक है, तो ऐसे अपने उन्होंने भी कुल गोत्र सेट किए हुए हैं. उसके और अंदर जाएंगे तो हम यहाँ के रहने वाले हैं, हम तलाजा के रहने वाले ब्राह्मण हैं, हम वहाँ के रहने वाले हैं. तो ये ट्राई कि कोई मराठी ब्राह्मण है, कोई वाराणसी के, काशी के ब्राह्मण है, तो ये सब अलग अलग टाइप के उन्होंने अपना सेटअप किया. सेम इज़ विद द अदर रिलीजन्स ऑल्सो. बोले आप पटेल हैं, बोले यस वी आर पटेल्स. तो पटेल में कौन से हैं, बोले मैं कड़वा पटेल हूँ. आप कौन है, हम लेहुआ पटेल हैं. तो ये उन्होंने अपने सेक्ट और फेथ, बिलीफ को सेटअप किया है. वर्शिप, किसी की भी पूजा कर सकते हैं, किसी व्यक्ति विशेष, जनता, मूर्ति, स्थान, दिशा, किसी की भी
पूजा कर सकते हैं। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, सभी लोग समान हैं, एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको समान अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। जॉब निकलेगी तो सबके लिए जॉब है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी को अगर बाय चांस बाय मिसफॉर्चून इफ समबडी इज नॉट फिट बाय एनी मीन्स, जैसे आर्मी के लिए तो फिट चाहिए, 6x6 हाइट चाहिए, सब कुछ चाहिए, पर अगर आप देखेंगे किसी का पैर नहीं है तो वो ऑफिस वर्क के लिए सूटेबल है, वो कर सकते हैं, तो उनको कोटा दिया जाता है, मौका दिया जाता है। फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। अब हमारा प्रमोशन किसके ऊपर जाना चाहिए? फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड के अंदर अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, एक इंसान की इज्जत बरकरार रहनी चाहिए, और यूनिटी भी, सब इकट्ठे होने चाहिए, एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, और देश मजबूत होना चाहिए। इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। इसलिए हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं आज की तारीख में 6th day of November, 26वां जो दिन है नवंबर का 1949 को हम अडॉप्ट करते हैं, इनैक्ट लागू कर देते हैं, और गिव टू आवरसेल्व्स, हमें खुद को ही अपनी प्रजा को देते हैं। क्या देते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द प्रीएम्बल of our constitution. It's very important. It's ninth standard also. You have to go through it, and mostly you have to learn it. Then, a systematic compilation of set of rules to run the government of a country is known as the constitution of the country. अब systematic compilation of set of rules है to run the government of the country is known as the constitution of the country. कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इन डायरेक्ट रिटन और रिटन अनरिटन फॉर्म। अब कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप से, रिटन भी हो सकता है और अनरिटन भी फॉर्म में होता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स विद द प्रीएम्बल विच आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है प्रीएम्बल के साथ। हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द स्टेटमेंट ऑफ नेशनल गोल्स एंड एम्स सच एज डेमोक्रेसी। अब फर्स्टली इट वॉज स्टार्टेड because of the goal, our first and primal goal was democracy. It is said that India is a democratic country, and it is actually, but many of the country also says that they are democracy, but they are not democracy. Most of the times the rulership change and dictatorship starts. इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे तो नॉर्थ कोरिया, किम जोंग अन, वो वहाँ के राजा बन के बैठे हुए हैं, और वो सुप्रीमियम लीडर हैं, वो कहीं पर भी कोई भी चुनाव नहीं होने देते, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। देन डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, सभी धर्मों को मानने की बात है, नेशनल यूनिटी, देश के अंदर यूनिटी होनी चाहिए, बंगाल से लेके राजस्थान तक और हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक, इंडिया इज़ वन। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज इस्टेब्लिश्ड। अब एक असेंबली को इस्टेब्लिश किया गया ताकि सबके नीड्स, राइट्स, उनकी इच्छाएं, उनके जो भी अलग अलग लोगों की अलग अलग सुविधाएं हैं, उसके ऊपर काम किया जाना चाहिए। इट स्टार्टेड वर्किंग ऑन 9th December 1946। 1946 में इट वॉज स्टार्टेड। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड ऑफ प्रोमिनेंट एंड डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर्स एंड लीडर्स। पढ़े लिखे, बहुत पढ़े लिखे लोग और लीडर्स को उसमें ऐड किया गया। देयर पॉलिटिकल विजन वॉज एंड फोरसाइट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब उनके जो आइडियाज़ थे, पॉइंट्स थे, वो सब पॉलिटिकल विजन थे, फोरसाइट थी, वो इनकॉर्पोरेट की गई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे, देन सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह, etc. provided their guidance. So these are the prominent people for the result of the constitution. Frank Antony represented the Anglo-Indian community. अब उस टाइम पे Britishers were living and residing in India from the past 300 years. तो उन्होंने मैरिज की थी इंडिया के अंदर, और काफ़ी इंडियन विमेन ने मैरिज की थी ब्रिटिशर के साथ, काफ़ी इंडियन जो मेन थे उन्होंने ब्रिटिश विमेन के साथ शादी की थी। तो उनके जो बच्चे हुए उनको हम एंग्लो इंडियन बोलते हैं। वो एक कम्युनिटी बन गई थी, तो उसका रिप्रेजेंटेशन भी ज़रूरी था। तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव में फ्रैंक एंटनी थे, एंड HP मोदी रिप्रेजेंटेड द पारसी कम्युनिटी। और पारसी कम्युनिटी जो कि माइनॉरिटी के अंदर थी, पारसी कम्युनिटी बहुत कम में थे, तो HP मोदी जो थे वो उनके कम्युनिटी के लीडर बन के सामने आए। द कमिटी एड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन स्कॉलर्स लाइक
अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड K.M. मुंशी। अब यहाँ पे 3 मेन कैरेक्टर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन के स्कॉलर थे। उन्होंने इसकी पढ़ाई की हुई थी, अच्छे तरीके से समझते थे, और अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और समझा था। So these were the very prominent people. Then there were female members like Sarojini Naidu and Vijay Lakshmi Pandit. Dr. Rajendra Prasad was elected as the president of the Constituent Assembly. There were a number of subcommittees to take care of various aspects of the Constitution. अलग अलग committees बनाई गई Constitution के various aspects को समझाने के लिए. The drafting committee, the final draft जो बनाया गया committee which was headed by Dr. B.R. Ambedkar, gave to the Constitution its final shape. और Constitution को उनका final shape देने में Dr. B.R. Ambedkar का बहुत बड़ा हाथ है. Total 166 meetings were held by the Constituent Assembly in the time period of 2 years, 11 months and 18 days. अब यहाँ पे almost 3 साल का टाइम लगा. 166 meetings were held for the Constituent Assembly, जिसमें different लोग थे, जैसे कि आपको बताया गया मैंने, जवाहरलाल नेहरू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, बलदेव सिंह, HP Modi, Frank Anthony, Sarojini Naidu, Vijay Lakshmi Pandit, and these people, and Dr. B.R. Ambedkar also, were very important people for drafting the final drafts, and they have done 166 meetings for Constituent Assembly in a time period of 2 years, 11 months and 18 days. और इतना समय लगा, यानी almost 3 साल लगे बनाने में. On 26 November 1949, the committee passed the constitution which was enforced on 26 January. 26 नवंबर को उन्होंने इसे पास कर दिया और then it was enforced on 26 January 1950. Do you know why the day of 26 January was selected to enforce the constitution? इसके बारे में आप पता कीजिएगा. अब मेन कैरेक्टर्स हैं, आप देखेंगे मौलाना आज़ाद हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, कन्हैयालाल मुंशी. दीज आर द क्रिएटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कोई एक ही नहीं है, सभी लोग इसमें इक्वली इन्वॉल्व थे. वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. हमको ज़रूरत ही क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन की? हम अपने हिसाब से जी सकते हैं, पर ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अब आप सिंपल बाइसिकल चलाते हैं, कभी ऐसा सोचा है कि मैं रॉन्ग साइड के अंदर बाइसिकल चला के फास्ट तरीके से, वहाँ पे ट्रैफिक कम है, स्कूल पहुँच जाऊँगा? इट इज़ अगेंस्ट द लॉ, नहीं चला पाएंगे आप, ठीक है. और अगर पकड़े गए और आपको नुकसान भी हो सकता है, फाइन भी किया जाएगा. और बाइक तो आप चला ही नहीं सकते बिकॉज यू आर ऑफ अ वेरी यंग एज. उसके अलावा कोई राह चलते के ऊपर आपने पत्थर फेंक दिया, या होली के अंदर मज़े करने के लिए कुछ केमिकल कलर्स उसके ऊपर डाल दिए, दीज थिंग्स आर अगेंस्ट द लॉ, ठीक है. पतंग उड़ाने के लिए भी कुछ रूल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. उत्तरायण में आप चाइनीज़ डोरा नहीं यूज़ कर सकते हो. क्यों? बिकॉज द एनिमल्स विल गेट किल्ड बाय इट, और इवन ह्यूमंस, ये भी एक प्रॉब्लम है. उसके अलावा आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते विच इज़ अगेंस्ट द लॉ. वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन और डायरेक्टिव प्रिंसिपल. हम सबके घर के भी आप रहते होंगे तो घर पे भी आपको पता है कि सुबह व्हेन यू वेक अप, तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक अप योर बेड, देन योर पिलोज शुड बी एट देयर प्लेस, योर शूज़ शुड बी पॉलिश्ड, यू शुड हैव योर ब्रेकफास्ट एट टाइम. आपका ब्रेकफास्ट आपके टेबल, वो डाइनिंग टेबल तक आपको जाना पड़ेगा. नहाने के लिए उपयुक्त टाइम है, ब्रश करके ही जाना है. ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है. तो दीज थिंग्स हम अपने घर में जब फॉलो करते हैं तो बाहर क्यों फॉलो नहीं करेंगे? तो व्हाट इफ़ देयर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशन? ऐसा कैसे होगा अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा? नो कंट्री कैन फंक्शन विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन. दुनिया की कोई कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के बिना काम नहीं करती है. अ कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स मैनी ऑब्जेक्टिव्स. कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को सर्व करती है. इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विद फाइनली वीव्स द एथोस एंड आइडियल्स ऑफ द कंट्री. अब जो किसी भी कंट्री के जो आइडियल्स हैं, विचारधारा है, उसे वो सेट करती है. इट टेल्स अबाउट द काइंड ऑफ गवर्नमेंट हाउ कंट्री वुड हैव. वो ये बताती है कि एक देश को कैसी गवर्नमेंट चाहिए, हाउ टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर कंट्री, और हमारी कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे चलना चाहिए. इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी इलेक्ट आवर लीडर्स so that they can run
द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन आवर बिलाफ। अब डेमोक्रेटिक फॉर्म के अंदर गवर्नमेंट को हम खुद चुनते हैं, अपने लीडर्स को, सो देन वी कैन रन आवर एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी हमारा काम का एडमिनिस्ट्रेशन, जो मैनेजमेंट चलता है, वो हमारे हिसाब से हमारे द्वारा ही चले। आप देखेंगे आपके घर के बाहर एक वैन आती है कचरा लेने वाली, गाड़ी वाला है कचरा निकाल, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनसिपैलिटी के जो लोग हैं उसे चुना कौन, जो उनके हेड है उसे चुना कौन जाता है? हम, नगर पार्षद। वो चुनते कौन है? हम चुनते हैं, वोटिंग करते हैं, तब वो चुन के आते हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम अच्छे बेटर लोग चुनेंगे, दोज आर रिस्पॉन्सिबल, तो दे विल टेक केयर ऑफ आवर सिटी एज वेल एज अस। However, there are provisions in the constitution to check the misuse of power by the leaders. अब ऐसा बहुत सारा है कि कई ऐसे प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि मिसयूज़ भी करते हैं लीडर्स अपने पावर की। ऐसे बहुत सारे चेक किए जाते हैं कि कोई मिसयूज़ तो नहीं कर रहा उसका, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक रूल कैसे काम करते हैं, वोटिंग, पोलिंग बूथ कैसे काम करते हैं, सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है एक्चुअल के अंदर, देन रिपब्लिक, वाई इंडिया इज़ नोन एज रिपब्लिक, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में कौन कौन आता है, कैसे कैसे आता, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में क्या क्या आता है, देन इनैक्ट लॉज, रिप्रेजेंटेटिव कौन है हमारे, देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ हमारे को बचाता है, पब्लिक ओपिनियन कैसे काम करता है, फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट कैसे काम करती है, देन फेडरल स्टेट, फंडामेंटल राइट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सब चीज़ें हैं इसे मैं इलेबरेटली और बहुत ओपनली आपको बताऊंगा, ठीक है। और तब तक थर्ड चैप्टर के नोट्स भी अपलोड हो जाएंगे, सो यू वोंट बी इन अ सूप, आपको सही तरीके से सब समझ में आएगा। इफ़ यू आर अ न्यू स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ idea, or if you got any kind of problem, please feel free to ask or contact on my WhatsApp number. I'm always there to help. Thank you very much. Have a very good day. Study hard.